afternoon, first year class. Today we are starting physics and we are starting with chapter 2 because it is very important और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं समझने वाली. ये आपने पहले ही मैट्रिक में पढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा about the vectors. This chapter number 2 is vectors and equilibrium. You know that what is a vector? All physical quantities are divided into two parts, vector quantities and scalar quantities. As you already know that those physical quantities which are specified completely by their magnitudes and directions as well, direction stability, are called vector quantities. Those physical quantities which are specified completely by their magnitudes only are called scalar quantities. Physical quantity क्या होती है? Quantity which can be measured. Measurement कैसे होती है? जैसे आप कपड़ा लेने जाते हैं, किसी को कहें कि मुझे 2 मीटर चाहिए. Two, only two doesn't mean anything. लेकिन 2 एक नंबर है, जब उसके साथ मीटर लगाते हैं तो वो फिर क्वांटिटी बन जाता है. A number with suitable unit measures the quantity or the magnitude. So ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई हैं बहुत ज़्यादा. और सबसे पहला टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है या इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इज द सेम थिंग. दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मैट्रिक. किसी भी सिस्टम में किसी पॉइंट को, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपने बतानी होती हैं. यहाँ किसी पॉइंट की लोकेशन को किस जरिए से बताया जाता है और ये सिस्टम क्या है ये आपने क्लियरली बताना है. इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दो लाइनें ना बेटा, ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन है वर्टिकल लाइन. दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O. O is called the origin. This horizontal line is called the x-axis. This vertical line is called the y-axis. It's very simple. अपने words में आप बेटा हर चीज लिख सकते हैं. It's very simple. In this coordinate system, in which two mutually perpendicular reference lines intersect at the point called origin. The horizontal line is called the x-axis and the vertical line is called the y-axis. Or how can we determine the location of a point? Suppose that you know that if this is a point AB, this is a point AB. So how can we determine the position of this point? Along x-axis A distance लेते हैं, along y-axis B distance लेते हैं, या इसके साथ ही ऊपर चले जाते हैं, B units ले लेते हैं, और जहाँ पर ये दोनों खत्म होते हैं तो this is the point AB. So what can we say that if you draw a perpendicular from the point B to x-axis, then point is M, OM distance is A, and MP distance is B. So we get the location of the point B. It is the same thing written over there. Everything is, and a vector quantity is specified completely by the magnitude. OP distance gives the length of OP is the magnitude of the vector. Or how can the direction is mentioned here? With the help of this angle. The direction of the vector can be represented by an angle with the representative line of the vector. This is the representative line of the vector is making with x-axis in anti-clockwise direction. देखिए बेटा, ये एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल. दिस इज ऑल टेक्निकल लैंग्वेज. दिस इज द लाइन विच इज representing the vector. That's why I say that it's a representative line. These two mutually perpendicular lines are called reference lines, because with these reference to these lines we locate the position of a point. बस बेटा ये आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना है, और ये सारी बाकी चीज़ें आपने पहले ही पढ़ी हुई हैं. You know that how can we add the vectors with the help of head to tail rule. ये देखिए बेटा, ये आपने
पहले से पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है। हाउ द वेक्टर्स आर एडेड एंड प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस। ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, या आपने एट रैंडम बना लेने, जैसे मर्जी बना लेने, लेकिन जब इनको आपने ऐड करना है तो पहले ए वेक्टर को यहाँ लिखना है। दिस इज द ए वेक्टर, ये देखें ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। ये जो पूरी बुक है इज रिटन बाय मी। ये किताब जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैंने लिखी हुई है, बहुत पहले लिखी थी। तो ये वेक्टर को ए को ले लेना है और ज्वाइन द टेल, ये टेल है इसकी बेटा, ज्वाइन द टेल ऑफ बी वेक्टर विद द हेड ऑफ ए वेक्टर। फाइनली ज्वाइन द टेल ऑफ ए विद द हेड ऑफ बी, ये रिजल्टेंट आ जाता है। रिजल्टेंट इज कॉल्ड द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आ जाता है आपके पास। तो in this way you get the sum of the two vectors. Similarly, if you take b vector first, यहाँ पे देखें इसके सामने ही बना सकते हैं। b वेक्टर की बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन इतनी होनी चाहिए, डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए। और जब यहाँ बनाएंगे b वेक्टर को, यहाँ पहले से बना देंगे इसकी टेल के साथ डेकोरेशन के लिए, और फिर इसके बाद a वेक्टर को इसके साथ ज्वाइन करेंगे, तो you will get the same resultant out here. In this figure, take b vector joining here at the tail of a vector। यहाँ बनाना है अपने फिगर ऐसी, ताकि खुद ब खुद ये रिजल्टेंट ऐसा आ जाए। तो b वेक्टर को यहाँ बना देना है, फिर आपने कहना है ज्वाइन द टेल ऑफ a वेक्टर विद द हेड ऑफ b वेक्टर। फाइनली ज्वाइन द टेल ऑफ b वेक्टर विद द हेड ऑफ a वेक्टर। सो वी गेट r वेक्टर इज इक्वल टू b प्लस a। अब दोनों ही r वेक्टर के बराबर है, इसलिए आपस में भी बराबर है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यू नो दैट जगह बदल लेने से जब ये चीज़ें ऐसे आती हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। सो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए रिप्रेजेंट्स दैट द वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिजल्टेंट वेक्टर। यू नो दैट व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर किसी बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं और उस बॉडी को वो खींच के एक तरफ ले जा रही हैं, अगर इन तीनों फोर्सेस को हटाकर सिर्फ एक फोर्स लगा दी जाए विच इज डिस्प्लेसिंग द बॉडी इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम फोर्स, हम कह सकते हैं कि ये जो बाद वाली फोर्स है इट हैज़ गॉट अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस। सिमिलर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अ वेक्टर विच हैज़ अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ given vectors is called resultant of the given vectors। मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है कि resultant vector is actually the sum, algebraic sum of, आम किस्म का जो sum होता है, ऐड करना होता है vectors का, उसको resultant vectors कह देते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि how can we find out the sum of the vectors by head to tail rule। तो by head to tail rule जब उनको ऐड करते हैं तो आखिर में resultant vector आ जाता है। Similarly, if you want to find out the subtraction of vectors, how can we subtract one vector from the other? Suppose ये दो vectors हैं, एक vector A है, एक vector B है, and B vector is to be subtracted from A। तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट कर देते हैं। ये वाले वेक्टर पैरेलल तो हैं मगर ये एंटी पैरेलल कहलाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये माइनस बी को ए में ऐड कर देते हैं। ए है ना, एग्जैक्टली बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, इसकी टेल इसके साथ ज्वाइन करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। तो जो पी आर है दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एन माइनस बी एन, इसके अलजेब्रिक सम के बराबर है। तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। ये आइडियाज पता होने चाहिए आपको कि सपोज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम द वेक्टर ए, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ बी एंड एड इट टू ए। जब रिवर्स डायरेक्शन ऑफ बी करेंगे, ये मैंने आपको फिगर में बना के दिखाया है, ये क्या बन जाएगा, ये बी वेक्टर की बजाय बन जाएगा माइनस बी। तो ए में माइनस बी को ऐड कर देते हैं तो वी गेट द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। सिमिलरली जब किसी वेक्टर को आप किसी स्केलर से या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ ये देखें डबल साइज का बन। इसी तरह अगर किसी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर
देन व्हाट हैपन्स, उसका जो जैसे अगर किसी वेक्टर ए को -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड तो डबल हो ही जाता है, मगर इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। तो ये आपने बेटा ध्यान में रखना है, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय द नेगेटिव नंबर its magnitude changes and its direction becomes exactly, its direction is reversed, it becomes exactly opposite to that of the given vector. Next definition is very important, and next definition is about a unit vector. Unit vector क्या होता है? Magnitude vector whose magnitude is equal to 1. A vector with a magnitude equal to 1 with no unit, यानी मैग्नीट्यूड का कोई यूनिट नहीं होता। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूर एक नंबर के साथ यूनिट लगाते हैं, जैसे 5 के साथ मीटर लगाते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ 1 होता है, विदाउट एनी यूनिट, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ये ध्यान में रखना है, अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 विद नो यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। मसलन एक वेक्टर है ए वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, तो इसको 5 मैग्नीट्यूड 5 एग्जैक्टली डिफाइन करना हो तो जैसे 5 मीटर होगा तो इसको 5 मीटर से डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर पूरे का पूरा कट जाता है, 1 रह जाता है। तो किसी भी वेक्टर को जब उसके टोटल मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वी गेट द मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद द डायरेक्शन ए हैट। A hat is called a unit vector whose magnitude is 1. Whose magnitude is 1. It represents only direction. जिस वेक्टर के साथ मर्जी आप इसको अटैच कर दीजिए तो उसके साथ ए हैट डायरेक्शन अटैच हो जाएगी। मसलन अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए वेक्टर पूरे का पूरा लिखा जा सकता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर की डायरेक्शन। ए वेक्टर का ये पूरा मैग्नीट्यूड है, ए हैट की अपना मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो सिर्फ ये डायरेक्शन जाहिर कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स which represents the positive direction of x axis, y axis and z axis. These are I hat, j hat and k hat. I hat, j hat and k hat are the 3 standard unit vectors in the positive direction of x axis, y axis and z axis. Very useful